Hello student, today we discuss the chapter 7 part 2 India people and economy and the chapter 7 mineral and energy resources खनिज और ऊर्जा संसाधन. According to this video, today we will discuss some points of this chapter. First, what is the meaning of minerals? खनिज क्या है? What are the types? Distribution of minerals in India. भारत में खनिजों का वितरण कैसे है? आयरन एंड मैग्नीज मिनरल्स को डिस्क्राइब कीजिए. बॉक्साइट, कॉपर, मिका. राइट ए शॉर्ट नोट, short introduction of these types of minerals. What are the energy resources? Energy resources क्या होते हैं? What are the types of the energy resources? Conventional, non-conventional, differences. ये क्या होते हैं? ये डिस्कस करेंगे. Conservation of minerals. खनिजों का संरक्षण क्या है? इसके अलावा इनसे रिलेटेड व्हाट आर द मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स एंड व्हाट आर द यूटिलाइजेशन ऑफ द मिनरल्स. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल्स. फर्स्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स? मिनरल आर द important things. You can say these are the mix up of rocks which obtaining from the inner part of the earth and outer part of the earth by the help of minings. These are known as the minerals. खनिज क्या होते हैं? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से या बाह्य भाग से जिन्हें हम खनन प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं उन्हें खनिज कहते हैं. अब यहां पर टाइप्स की बात आती है तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक. मेटलिक एंड नॉन मेटलिक. मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं? ऑल मिनरल्स हैव द मेटल्स नोन एज द मेटलिक मिनरल्स. सम टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव नो मेटल्स. दीज आर नोन एज द नॉन मेटलिक. धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु पाई जाती है, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं. जिनमें धातु नहीं पाई जाती है वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं. These are the two major types. Metallic also divide in some parts, ferrous and non-ferrous. Ferrous low खनिज, non-ferrous alloy खनिज. Some types of minerals have the iron quantity. These are known as the ferrous minerals. But some have no quantity of iron. These are known as the non-ferrous minerals. कुछ खनिज जिनमें लोहे की मात्रा होती है वे लोह खनिज कहलाते हैं. कुछ खनिज जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है वो एलो खनिज कहलाते हैं. अब फेरस में आयरन आ जाता है, मैंगनीज आ जाता है. नॉन फेरस में कॉपर, सिल्वर ये आ जाते हैं. अब आती है बारी नॉन मेटलिक की. सम टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव नो क्वांटिटी ऑफ द metal. These are known as the non-metallic. And according to non-metallic, you can say fuels and non-fuels. Fuels you can count koila, petroleum, natural gas. Non-fuels you can say the mica. These are the example. And that is the difference between the metallic and non-metallic, ferrous and non-ferrous, fuels and non-fuels. Next topic, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. खनिज का वितरण. भारत में खनिजों का वितरण कैसे है? तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ बेल्ट. अकॉर्डिंग टू बेल्ट यू कैन से नॉर्थ ईस्ट प्लेटू रीजन, साउथ वेस्ट प्लेटू रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन, हिमालयन रीजन. इफ यू थिंक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट प्लेटू रीजन, then you can count the state of Jharkhand.
Odisha, Chhattisgarh, and you can take the example of the minings of Beladila, Talcher, Kendujhar, Mayurbhanj, Raniganj, and etc. Next, Southwest Plateau, दक्षिणी पश्चिमी प्लेटू एरिया. दक्षिणी पश्चिमी प्लेटू एरिया में यू कैन से महाराष्ट्र एंड कर्नाटका मेनली. इन महाराष्ट्र यू कैन से रत्नागिरी, एंड इन कर्नाटका चित्रदुर्ग, बेलारी, कुद्रेमुख एंड एक्सेट्रा. नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी. उत्तरी पश्चिमी जो बेल्ट है हमारी, मेनली you can count the Rajasthan. Khetri is famous for the mineral deposit, and other than Himalayan region, different types of minerals also found in the Himalayan regions. Next, how can you introduce in a briefing on iron and manganese? Iron, that is a basic minerals. Iron is a basic minerals. There are different types of iron, that is also the basic minerals. It provides the base to different types of industries. ये ऐसा खनिज है जो हमें आधार प्रदान करता है. 4 प्रकार होते हैं आयरन से. इन 4 टाइप्स में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट. These are the 4 types of iron minerals. लौह खनिज के ये 4 प्रकार. बेसिक इंडस्ट्री बता दिया. बेसिक इंडस्ट्रीज का काम करते हैं ये. इंडस्ट्रीज को बेस प्रदान करते हैं आयरन. इसके अलावा गर्म भट्टियों में इनको पिघलाया जाता है, लाइमस्टोन डाला जाता है, उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है. ठंडा होने पर अलग अलग रूप जो है इनको दे दिया जाता है. ये है आपका आयरन, जिसकी मुख्य बेल्ट कर्नाटक में पाई जाती हैं. चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, बेलारी, ये इसके प्रमुख जो है. रत्नागिरी प्रमुख जो है माइनिंग. मैग्नीज मिश्र धातु के रूप में प्रयोग होने वाला आयरन के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज होता है. इसका प्रयोग एक मिक्सर मेटल के रूप में किया जाता है. इसके अलावा इसका प्रयोग पेंट बनाने में व अन्य चीजों में भी इसको उपयोग में लाया. बॉक्साइट एंड कॉपर. बॉक्साइट इज आल्सो ए मेजर मिनरल्स बिकॉज this have the higher quantity of alumina, and alumina is so useful for the aluminium. Aluminium used in different types of things, different types of requirement. Means we can use in furniture industries, in transport industries, in communication industries. That is bauxite. Bauxite में aluminium ज्यादा होता है. Aluminium का प्रयोग अलग अलग रूप से हम अलग अलग प्रकार की चीजों में करते हैं. ये बॉक्साइट है. उड़ीसा सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है. इसके बाद आती है कॉपर, तांबा. इन ब्रीफ दे रखा है आपका. कॉपर भी एक ऐसी धातु है जिसमें हम बिजली की तारों में प्रयोग करते हैं. पहले करेंसी बनाने में किया जाता था, बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है. मिश्र धातु के रूप में गोल्ड की कोई भी चीज नहीं बन सकती जब तक आप उसमें कॉपर मिक्स नहीं करते. तो कॉपर भी एक मिश्र धातु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है मिका. अभ्रक. मिका का प्रयोग हम बिजली की तारों में, बिजली को कनेक्टिविटी में, इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा होता है. प्लेटों में इसका विपाटन किया जा सकता है. और अभ्रक या मिका एक ऐसा खनिज है जिसका प्रयोग हम विद्युत के न गुजरने का, यानी कि करंट को न पास होने के लिए, इसमें पावर होती है भी आगे करंट पास ना होता है, तो इसलिए बिजली की वायर्स में और अनेक इलेक्ट्रिक उसमें इसका प्रयोग करते हैं. व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज. ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? भाई हम खाना खाते हैं तभी हम काम कर पाते हैं. तो किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा के साधनों की जरूरत होती है. और वो साधन 2 तरीके से होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत. अब परंपरागत वो होते हैं जो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत वो है जो कि अभी शुरू हुए हैं. तो इनमें डिफरेंसेस है. क्या डिफरेंसेस है? वो प्राचीन काल से प्रयोग होते आ रहे हैं, ये नवीन है.
परंपरागत से प्रदूषण होता है, गैर परंपरागत से प्रदूषण नहीं होता है। ये सस्ते हैं, परंपरागत गैर परंपरागत सस्ते हैं, परंपरागत सस्ते नहीं है। परंपरागत भविष्य के लिए सेफ नहीं है, जबकि गैर परंपरागत भविष्य के लिए सेफ है। ये डिफरेंसेस इनमें। क्वांटिटी में देख लें आप तो परंपरागत क्वांटिटी में कम है, गैर परंपरागत क्वांटिटी में ज्यादा है मात्रा में। ये इनमें दोनों में डिफरेंसेस होता है। आप डिटेल में जाएं तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, all resources are found in a limited quantity and not safe in the future. You can say coal, petroleum, natural gas. कोयला, you know betterly, कोयला क्या है? ईंधन के रूप में, ऊर्जा के साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण साधन है। कोयले का प्रयोग हम परिवहन में, घरों में ईंधन के रूप में और ऊर्जा के मुख्य सोर्स के रूप में करते हैं। 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे घटिया किस्म का होता है। लिग्नाइट को बुरा कोयला भी कहते हैं, बुरा हीरा भी कहते हैं और अधिकतर उद्योगों में लिग्नाइट का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार मैंने बताए। कार्बन के अंश के आधार पर ये चारों प्रकार इसके। हमारे यहां लिग्नाइट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोयले के भंडार कहां होते हैं? कोयले के भंडार झारखंड, उड़ीसा, असम, यहां पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल जैसा कि आपको पता है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन के रूप में, ऊर्जा का साधन के रूप में पेट्रोल सबसे महत्वपूर्ण है और दैट इज फाउंड इन द लिमिटेड क्वांटिटी। पेट्रोल के साथ निकले पदार्थों का प्रयोग हम दूसरे उद्योगों में करते हैं। ये भी एक बेसिक इंडस्ट्रीज का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ निकले पदार्थ दूसरे उद्योगों में रासायनिक खाद बनाने में, वैसलीन बनाने में, क्रीम बनाने में, फेस वॉश बनाने में इसके साथ निकले हुए पदार्थों का प्रयोग हम करते हैं। नेचुरल गैस जैसे कि घरों में हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और परिवहन के साधनों के रूप में भी करते हैं। दीज आर 3 मेजर सोर्स ऑफ द कन्वेंशनल। परंपरागत के ये 3 जो है मुख्य साधन पाए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत। अकॉर्डिंग टू नॉन कन्वेंशनल, जो अभी शुरू हुए हैं, कुछ साल पहले ही शुरू हुए हैं, जो भविष्य के लिए सेफ हैं, जो मात्रा में अधिक हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायो एंड जियोथर्मल। सोलर एनर्जी क्या है? सूर्य के ताप को ऊर्जा में बदला जाता है, सोलर एनर्जी कहलाती है। फोटोवोल्टाइक सेलों के द्वारा उस गर्मी को बदल दिया जाता है, सोलर हीट को इलेक्ट्रिसिटी में, सोलर एनर्जी कहलाती है। विंड एनर्जी क्या है? पंचकियों के द्वारा स्पीड ऑफ एयर, जो हवा की गति है, दैट इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। टाइडल एनर्जी क्या है? ज्वार भाटा आता है, पानी एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे, और फिर टर्बाइनों के ऊपर उस पानी को डाल दिया जाता है, उस गति का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में किया जाता है, वो आपकी टाइडल एनर्जी कहलाती है। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस एक गड्ढा बनाया जाता है, जिसको गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। वेस्ट मेटेरियल को डाल दिया जाता है और उसमें जो गैस तैयार होती है, कुछ महीनों के बाद पाइप के माध्यम से उसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं, वो बायोगैस कहलाती है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? भूमि के अंदर जो ताप होता है, उस ताप को, उस टेम्परेचर का प्रयोग हम ऊर्जा बनाने के रूप में करते हैं, वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। दीज आर द बोथ ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। खनिजों के संरक्षण का क्या अर्थ होता है भाई? सेव द सोर्स ऑफ मिनरल्स, सेव द मिनरल्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दैट इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। खनिज संरक्षण क्या है? खनिजों को वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के लिए बचाए रखना खनिज संरक्षण कहलाता है। उसके क्या तरीके हो सकते हैं? इक्वल बंटवारा करना, उचित मूल्य का निर्धारण करना, ओवर यूज पर कंट्रोल करना, उसको रोकना। इस तरह से हम खनिजों का संरक्षण करते हैं। बहुत इजी टॉपिक हमारे 2 थे आज, खनिज और ऊर्जा संसाधन, बहुत इजी, जिसमें हमने डिस्कस किया मिनरल्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है फेरस में, नॉन फेरस मिनरल्स में, क्या डिफरेंस होता है मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स में। भारत में खनिजों का जो वितरण है, पेटियां है, वो प्रमुख कौन कौन सी है वो बताया हमने, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हिमालयन पेटी। आयरन और मैग्नीज
खनिजों के ऊपर संक्षिप्त जो है उसका ब्यौरा दिया हमने। बॉक्साइट, कॉपर, बीका, एनर्जी रिसोर्सेज जो बताया, ये कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, और इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं ये बताया हमने। खनिजों का सिलेक्शन का क्या अर्थ है, उसके तरीके क्या हैं, ये टॉपिक हमने दिया, डिस्कस की। टुडे आई आल्सो ट्राई फॉर माई बेस्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम एंड बी हैप्पी। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना भी ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें। थैंक्स टू ऑल।